A very good o'clock to all the students. Here I am Amisha ma'am, your physics teacher. Students, today I am here to start our next topic, that is refraction of light through a prism. We have discussed the refraction of light through a glass slab earlier, and I have sent you the videos as well if you have watched. Now I am sending you the video that contains the explanation regarding refraction of light through a prism. So students, if you might have watched or if you might have seen the prism, then you should know the total surface in prism are 5. How they are 5? Let's see. If I am considering here, this is a prism na. फर्स्ट इज दिस सरफेस, फर्स्ट फ्रंट वन ट्राइंगुलर, इसके बैक में भी एक ट्राइंगुलर होती है, सेकेंड सरफेस पीछे वाली. थर्ड इज दिस वन, साइड वन, दैट इज अ रेक्टेंगल सरफेस. Fourth is again a rectangle surface, and fifth one is the base of that prism. Okay, so how many total surfaces are there in prism? 5. 5 surface. In that 5 surfaces, how many triangular surface are there? तो triangular surface कितने हैं front में and back side में? That means only 2 triangular surface are there in the prism. The other 3 surface shapes are rectangular, 3 rectangular. Now let's talk about the name of those surfaces. So the bottom rectangular surface of the prism is rough generally. If a prism is actually a prism, then its bottom surfaces should be rough. So that bottom surface is not working for the refraction. Do remember that. Okay. So for the refraction, which all surfaces we are going to conduct here, only 2 rectangular surfaces leaving the bottom surface and those triangular surface, the left one, that is 2 rectangular surfaces, that is side one, are your what? They are the refracting surfaces of the prism. See, we will not take triangular surfaces, which are why we are not considering the triangular surface for the refraction? Because these triangular surface, students, are the parallel surface. They are parallel to each other. If the light goes from here, it will refract, it will move from here. तो ये तो glass slab वाला ही case हो गया ना. If you could remember, जो ग्लास स्लैब का अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा? नो डिफरेंस विल बी देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एज द ट्राइंगुलर सर्फेसेस. ओके, नाइदर वी टेक द बेस नॉर दिस ट्राइंगुलर सर्फेसेस. तो द लेफ्ट वन आर अवर रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, दे आर कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म. Now the triangular surface is what? It is a face of the prism. Triangular surface जो students है, that is what our known as face. Why it is called face of the prism? Because from this surface only you will be able to see or you will be able to watch the refraction of light. Okay, जब light यहाँ से आ रही है from this surface, from this path, तो ये वाला सरफेस पर आ रही है, आप देखोगे यहाँ से थोड़े, आप तो फ्रंट से देखोगे ना, सामने से. और फ्रंट में कौन सा वाला सरफेस है? ट्रायंगुलर सरफेस. इसीलिए इसको नाम दिया गया है फेस ऑफ द प्रिज्म. ओके, नाउ इफ यू कुड सी दिस डायग्राम ऑफ द प्रिज्म, तो हियर द लास्ट, हियर द बॉटम वन इज द बेस. ओके, दिस फ्रंट वन एंड द बैक वन आर द triangular surface, and refracting surfaces are these rectangular shape. They are the rectangular shapes. Now what about this refracting edge? एक ये ऊपर वाली topmost edge देख रहे हो, edge होती है line. This topmost line is our refracting edge, as it is joining 2 refracting surfaces. क्योंकि ये 2 refracting surfaces को join कर रही है, एक ये वाला refracting surface और एक इधर वाला refracting surface. तो 2 refracting surfaces को जो line या जो edge join करती है, that is the refracting edge. Okay, so now when I am talking of this prism is what? It is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces. तो you can say कि what is prism? It is a transparent medium which is bounded, यानी enclosed by 5 plane surfaces with triangular cross section. Okay, where 2 rectangular surfaces acts as refracting surface and third rectangular surface is a base of the prism. Now if you could see the topmost angle here, it should be denoted, if I could say capital A, this is our angle of the prism. It is very important, students. Why? If angle of prism changes, then the way the refraction is done is also changed. Now let's see here how this refraction is occurring. Okay, draw a triangle surface of the prism. Okay,
if an incident light is for the refraction, the topmost or the priority is the light ray. जो भी लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करेगी, टकराएगी, उसको जाना कहाँ चाहिए? लाइट की टेंडेंसी होती है टू फॉलो द स्ट्रेट पाथ, ये ग्रीन कलर का दैट इज़ ओरिजिनल पाथ, ये फॉलो करना चाहिए, बट ये फॉलो नहीं करेगी. वाई? बिकॉज इट इज़ स्ट्राइकिंग फ्रॉम दिस रेयरर मीडियम, और अंदर वाला है डेंसर मीडियम, ट्राइंगुलर वाला. ठीक, तो प्रिज्म की अगर आप बात करें तो ये जब आप सामने से देख रहे हो, ट्राइंगुलर सरफेस से देख रहे हो, तो जो ये वाला सरफेस है दैट इज़ द रेक्टेंगुलर सरफेस, सरफेस 1, और ये है रेक्टेंगुलर सरफेस दैट इज़ सरफेस 2. ओके, देख आप फ्रंट से रहे हो तो आपको ट्राइंगल जैसा नज़र आ रहा है. अंडरस्टूड? When an incident ray is striking on this surface 1, then it should follow this original path. Na, it should go straight as light's tendency, but it is not. Why? The reason is, as we have seen in our refraction, that refraction is what? The bending of light when the light ray travels from one medium to the another. Light ray पहले medium से दूसरे medium में आ रही है तो it should bend. अब bend कहाँ पर होगी ये आपको बताना है. एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो जस्ट टेल मी किस मीडियम से, जब वो इस मीडियम से रेयरर से डेंसर में आती है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है? इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट शुड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. दैट मीन्स अब नॉर्मल यहाँ पर कैसे बनाए स्टूडेंट्स? नॉर्मल ये तो दिख रहा है बट आया कैसे? नॉर्मल ऐसे आया कि जब आप ये सरफेस देख रहे हो तो जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी दैट इज़ दी नॉर्मल. यहाँ पर ये बना रही है तो ये नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट हो गई. इसको जाना ऐसे चाहिए था, ग्रीन वाले पेन जो मैंने दिखाया ओरिजिनल पाथ, बट ये ऐसे नहीं जा रही, ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ, ओरिजिनल से नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई. तो ये आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है अब, और इसका यहाँ पर नाम हो गया रिफ्रैक्टेड रे. अंडरस्टूड? अब जब यहाँ पर ये आ गई स्टूडेंट्स तो अगेन इट हैज़ टू मूव फर्दर, आगे भी इसको निकलना है. यहाँ पर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है. जब डेंसर से रेयरर में लाइट ट्रैवल करती है तो क्या होता है? इट शुड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे चली जाती है. अब यहाँ पर अगेन नॉर्मल कैसा कंसिडर करोगे? ये सरफेस है पूरा, यहाँ पर ये आपका नॉर्मल है दैट इज़ 90 डिग्री वाला. नॉर्मल ये है तो लाइट यहाँ के इधर की तरफ जानी चाहिए. अब ये रिफ्रैक्टेड रे आ रही है तो ये तो इसका नॉर्मल पाथ है, ओरिजिनल पाथ, सॉरी नॉट नॉर्मल, इट इज़ ओरिजिनल पाथ. यहाँ तो ट्रैवल नहीं करेगी, ये बेंड होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज एक मीडियम आ गया है बीच में. तो जब ये ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो ये यहाँ पे डेविएट हो गई, और जैसे ये डेविएट हुई तो इसका एक नाम पड़ गया इमर्जेंट रे. इमर्जेंट का मतलब ये होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब जो एंगल सपोज किया आपने यहाँ पर, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो यहाँ पर बना दैट इज़ यहाँ पर इधर की तरफ रिफ्रैक्टेड रे. नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो बना दैट इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अंडरस्टूड? ये सारी यही बातें लिखी हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव डिक्टेटेड हियर. अब यहाँ तो ये समझ आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस? यहाँ की अगर आप बात करोगे तो ये इमर्जेंट एक रे आ गई, लेकिन अगर आप देखो इस इमर्जेंट रे को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ, ठीक, और ये आप नॉर्मल पाथ जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, शुरुआत वाली रे का, वो देख लो. तो जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ होता है और जो बैकवर्ड प्रोड्यूस की गई आपकी इमर्जेंट रे है, उन दोनों के बीच में जो क्रॉस सेक्शन होता है उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल डेल्टा. वी प्रोनाउंस इट एज डेल्टा एंड इट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं इसे आप? एंगल ऑफ डेविएशन. सो हियर इफ इट इज़ बीइंग आस्क्ड व्हाट यू विल से? The angle between the direction of incident ray and the direction of emergent ray in case of prism is called angle of deviation. वो एंगल जो फॉर्म होता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो आपकी लाइट जा रही है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में, तो वो जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन हियर. नाउ स्टूडेंट्स ये तो हमें समझ में आ गया अपने प्रिज्म का रिफ्रैक्शन. अब इसका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन ऑल्सो कम्स, लेट्स गो थ्रू इट. See, before the derivation comes of 5 marks. Before this derivation, let's recall some properties that we have discussed or we know in our mathematics which is being used. Okay. First one है
ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और हमें पता है कि एंगल्स जितने हैं इन सब का जो सम है उस क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ओके, एंड द सम ऑफ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, थर्ड आप जानते हो जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वन एंगल किसके इक्वल है, 3। वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है डेरिवेशन के लिए, दैट इज एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। लेकिन ये ध्यान रखना इंटीरियर तो हूँ लेकिन उससे अपोजिट हूँ, वो वाली आर्म पे ना हो करके, साइड पे ना हो करके दूसरी साइड पर हूँ। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डेरिवेशन हियर। वही वाला बेटा ये फिगर है प्रिज्म का, ठीक है। यहाँ पर सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस नेम्स आई हैव मेंशन्ड। शुरुआत करते हैं, है ना। लेट्स टेक द फर्स्ट फिगर दैट इज एंगल ट्राइंगल एम पी एन क्यू, ये वाला कंसीडर करते हैं। तो जब आप ट्राइंगल एम पी क्यू को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ये डेल्टा 1 एंगल बना रहा है, ये डेल्टा 2 बना रहा है और ये डेल्टा है, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज़ हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू डेल्टा। ये क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो जिस वजह से डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, P क्या है डेल्टा 1 प्लस Q क्या है डेल्टा 2। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली लेट अस कंसीडर ये वाला पार्ट, ये ठीक, इसको मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ रख लिया। जब आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये डेल्टा 1 है, ये R1 है। तो एंगल I जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस R1, क्योंकि ये क्या पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों जो हैं ये बराबर हो जाएंगे, इनका सम किसके, एंगल I के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ से आपको क्या मिल गया, नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड पुटिंग इन इक्वेशन 1। डेल्टा 1 कॉमन है, तो डेल्टा 1 की आप यहाँ से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, एंगल I माइनस R1। डेल्टा 1 क्या है, एंगल I माइनस R1, राइट। ये वाली वैल्यू आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। इसको आपने प्लेस कर दिया। अब आप एक और फिगर कंसीडर करिएगा, ये वाला स्टूडेंट्स, ये भी सेम यही वाला है, बस इधर की तरफ से है। यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो इज इक्वल टू है डेल्टा 2 प्लस R2, राइट। डेल्टा 2 प्लस R2 बराबर एंगल E, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू मिल गई, वो क्या हो गई, एंगल E, R को ट्रांसपोज कर दिया माइनस R2। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1, इसमें लगा दीजिए। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 की जगह क्या आप लगाओगे, एंगल I माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 की जगह एंगल E माइनस R2। आप क्या करेंगे, एंगल I और एंगल E को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2। ये आपकी एक फाइनल इक्वेशन बन गई। इतना समझ में आया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया ये वाला पूरा एक, ये MPNQ पूरा एक हमने कंसिडर कर लिया आपका पैरेललोग्राम, ठीक, या क्वाड्रिलेटरल आप इसे को, पैरेललोग्राम तो नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स कंसिडर द क्वाड्रिलेटरल APNQ। उसमें क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360, वी नो वेरी वेल, अंडरस्टूड। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर सिंस AP जो है एक सरफेस है, सरफेस ही तो कंसीडर करी थी, और उस पर नॉर्मल स्ट्राइक हो रहा था ये, ठीक। सो वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिला कि जब नॉर्मल स्ट्राइक होता हुआ जा रहा है तो एंगल ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। वी गॉट टू नो दिस, ओके।
एंड जब ये वाला एंगल 90 है, सिमिलरली यहाँ पर भी यही कंडीशन है। ये जो क्यू के आगे लाइन जा रही है, अगर आप पीछे देखोगे तो ये यही सेम कंडीशन यहाँ है। जब आप इसको देखो तो यहाँ पर भी ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से पता लग गया एंगल, लेट्स रिमूव एंगल P प्लस एंगल Q, क्योंकि दोनों का सम हमें मिल गया 90 प्लस 90 कितना होता है, 180। 180 तो पता ही लग गया। अब 360 में से 180 माइनस किया तो वो क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल N, ये बराबर कितने, 180 के। अब कंसिडर किया ट्राइंगल PNQ, सबसे बॉटम वाला बेटा, ट्राइंगल PNNQ, ये नीचे वाला, ठीक, इसको यहाँ ले आए हम। PNQ जब आपने कंसिडर किया तो ये R1, ये R2 और ये सिंपली N, ये एक ट्राइंगल है तो इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होने चाहिए। R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। हम क्या कर सकते हैं, 180 कॉमन आ रहा है, इक्वेट करेंगे, इक्वेट यानी डिवाइडिंग दिस इक्वेशन 4 to 5, what we will get, एंगल A प्लस N अपॉन R1 प्लस R2 प्लस एंगल N कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे 180 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो बचा क्या, एंगल A अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1। समझ आया, R1 प्लस R2 आपने इधर ट्रांसपोज किया तो ये बचा एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अंडरस्टूड। अब ये एंगल A की वैल्यू आ गई। नाउ लेट्स मूव टू दैट इक्वेशन वी गॉट अर्लियर। कौन सी मिली थी, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, यही तो मिली थी यहाँ पर हमको सबसे नीचे। इस इक्वेशन को आपने कंसिडर कर लिया। यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह हम स्टूडेंट्स रख सकते हैं ना एंगल A, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल के आई है R1 प्लस R2। लेट्स पुट इट हियर। So putting the value of R1 plus R2 is equal to angle A in above equation, so what you will get, delta is equal to I plus E minus A, or you can say that delta plus angle A is equal to I plus E. This is the complete derivation of this prism. This is very important, just go through it again what I have explained. कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का, you will get it easily. Okay, thank you for watching the video and try to solve your numericals related to it. Thank you.